بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسکرانے سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا مردانہ کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پاؤں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوہا کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کی غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا کا استعمال کروائیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا کرنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پیا کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کے لیے بھینس کے دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو۔ اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے نظام ہاضمہ کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتی ہے اور موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹ لیں، بد ہضمی کا پرابلم نہیں ہوگا۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی سواری کا جانور گم ہو جائے پھر مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو گمشدہ سواری کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لیں، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھائیں، جوڑ اور پٹھے طاقتور ہو جائیں گے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش شروع کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلاپن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام اسکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آہ بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ انار کا جوس استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے سر کے بال گرنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जब किसी औरत का शौहर घर पर मौजूद हो तो इसको इसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा ना रखना चाहिए और इसके घर में इसकी इजाज़त के बगैर किसी को आने की इजाज़त ना देनी चाहिए, और इसकी आमदनी से इसके हुक्म के बगैर जो कुछ खैरात करे तो इसका आधा सवाब शौहर को मिलेगा, यानी अलावा माल के सवाब के नफ्स फाल खैरात दही का भी पूरा सवाब औरत को ना मिलेगा। लीज के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ जाता है और मसाने में इन्फेक्शन होता है। खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। दिमाग की बीमारी हो तो शहद में चंद दाने दालचीनी मिलाकर खाने से दिमाग की बीमारी ख़त्म हो जाती है। पौधों के गमले में ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, बदन की गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर बच्चे का रंग काला हो तो उसे गाय का दूध पिलाओ, रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर गुर्दे में पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिए, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। अगर आप सोने से पहले अदरक को चबा लें तो फालज का अटैक जिंदगी भर नहीं होगा। अगर वजन में इजाफा हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें। मसूर की दाल खा लिया करें, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। भुने हुए चने खाने से हड्डियां ऊंट की हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। गुस्सा ना किया करें, क्योंकि गुस्सा जिगर को कमज़ोर कर देता है। खाना खाकर फौरन सोने वाले बंदे के कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। आयरन की कमी को दूर करना चाहते हो तो पालक और गोभी का इस्तेमाल कर लिया करें। जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं वो चावलों को पीसकर इसमें नींबू के कतरे शामिल करके चेहरे पर लगाएं। 3 दिन में झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची खाकर 8 साल तक आप लोग कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही कभी आपका सांस फूलेगा। आप सिर्फ आलू और मक्खन खाकर तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ऊँटनी का दूध पीकर सो जाओ, आपका जिस्म एलर्जी से महफूज रहेगा। ऊँटनी के दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। खानों के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करें, ये बदन की जिल्द को टाइट रखता है। खजूर जिगर की कमज़ोरी को ख़त्म करने और खून पैदा करने में मुफीद है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगा दें, खारिश से निजात मिल जाएगी। चावलों को उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालने से चावल अलग अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मकदार में नींबू का रस डालने से चावल खुश जायका और सफ़ेद हो जाते हैं। दूध में सौंफ डालकर पी लो, कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। नाश्ते में 1 अंडा ज़रूर खाएं, ये जिस्म को सेहतमंद रखता है। अंडे में विटामिन्स की काफ़ी मकदार होती है। 4 चीज़ों से बदन को ताक़वियत मिलती है: नरम व मुलायम मलबूसात, ज़ेब तन करना, इत्तेदाल के साथ हमाम करना, मुर्गन और शरई ग़िज़ा इस्तेमाल करना, उम्दा खुशबू लगाना, ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करें, ज़िंदगी भर गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं इनकी जिल्द जल्दी ख़राब होती है। पानी कम इस्तेमाल करने से गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। टमाटर का रस और अनार कुदरती तौर पर डेंगू के खिलाफ बेहतरीन काम करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र की तरफ जाती है तो सालेह आदमी किसी किस्म की घबराहट के बगैर अपनी कब्र में बैठ जाता है। फिर कहा जाता है कि तुम किस दीन पर थे? वो कहेगा इस्लाम पर। इससे पूछा जाएगा ये आदमी कौन थे? वो कहेगा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह की तरफ से मोजज़ात लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने इनकी तस्दीक की। इससे पूछा जाएगा क्या तुमने अल्लाह को देखा? वो जवाब देगा किसी के लिए दुनिया में अल्लाह को देखना सही लायक नहीं। इसके बाद इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी तरफ देखता है कि जहन्नम के बाद हिस्से बाज को खा रहे हैं। उसे कहा जाता है कि उसे देखो जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनकों खूबसूरती को देखता है तो उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा मुस्कन है, तुम यकीन पर थे, इसी पर तुम फौत हुए और इंशाअल्लाह तुम इसी पर उठाए जाओगे। फिर बुरे आदमी को इसकी कब्र में बिठाया जाएगा तो वो बहुत घबराया सा होगा। इससे पूछा जाएगा तुम किस दीन पर थे? तो वो कहेगा मैं नहीं जानता। फिर इससे पूछा जाएगा ये शख्स कौन थे? वो कहेगा मैं लोगों को एक बात करते हुए सुना,
तो मैंने भी वैसे ही कह दिया। इसके बाद इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराग कर दिया जाएगा, तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनकों खूबसूरती को देखेगा। तो उसे कहा जाएगा, इसको देखो जिसे अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिया। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराग कर दिया जाएगा, तो वो उसे देखेगा। इसका बाज हिस्सा बाज को खा रहा है। उसे कहा जाएगा, ये तेरा ठिकाना है, तू शक पर था, इसी पर फौत हुआ और इंशाअल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। पेट की चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती है। खीरा पेशाब की जलन में कमी करता है और हाथ पांव की जलन भी दूर कर देता है। धनिया हैजा और टाइफाइड में मुफीद है। जोड़ों का दर्द और बेख्वाबी को दूर करता है। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, दिल तंदुरुस्त रहेगा। रोजाना नहार मुंह लंबे लंबे सांस लिया करें, इससे दिल की बीमारी नहीं होगी। छाती की बलगम जान न छोड़ रही हो तो दूध में तिलों को भून कर खाओ, बलगम आना बंद हो जाएगी। ज्यादा देर तक पेशाब को रोकने से आपको पथरी, घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। नहाने से कबल सब्ज़ चाय पी लेने से बदन कभी कमज़ोर नहीं होगा। ज़्यादा मीठा खाने वाला बंदा जल्द बूढ़ा हो जाता है। कमर दर्द का शिकार रहने वाले लोग तख्त पर या फर्श पर सोने की रूटीन बना लें। बिला वजह ज़्यादा खाने से बदन में सुस्ती आ जाती है। लीमू के छिलके पीसकर दूध में शामिल करके रात को चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द हो तो जीरा इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। रोज़ाना नीम गर्म पानी पी लेने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हड्डियों में कमज़ोरी महसूस हो तो गाय का दूध गर्म करके पी लिया करें। जो अफराद मैदे के मरीज़ हों वो सहरी के वक़्त सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुसलसल और बहुत ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ सकती हैं। अगर नींद न आती हो तो सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चमचे शहद खा लें। बैठने और लेटने में सहारे की बजाय घुटनों और पैरों पर जोर डालने की कोशिश करें। घुटने और जोड़ मजबूत हो जाएंगे। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आँख में कचरा वगैरह पड़ जाए तो मुतासरा आँख में दूध के 2 कतरे डाल दो, इंशाअल्लाह कचरा आँख से बाहर निकल आएगा। अगर किसी भी वजह से पैरों में दर्द रहता हो तो रात में सोने से कबल जैतून के तेल की मालिश करें। नींद पूरी करने से सारा दिन दिमाग फ्रेश रहता है और तमीरी सलाहियतों में इजाफा होता है। निकला हुआ पेट और चर्बी को कम करने का तरीका। कलवंजी 50 ग्राम लें और लीमू का अर्क हस्बे ज़रूरत लें। किसी शीशे की प्याली में कलवंजी रखकर लीमू का इतना अर्क डालें कि कलवंजी अर्क में डूब जाए, फिर इसको डाप दें। जब कलवंजी खुश्क हो जाए तो इसको पाउडर की शक्ल में सफ़ोफ बनाकर किसी साफ बोतल में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त खा लिया करें, हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। गन्ने का रस पीने से रंग निखर जाता है। दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाने से बढ़ते हुए मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। फूले हुए मसूड़ों पर नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर मसाज करो, मसूड़े ठीक हो जाते हैं। शहद को सिरके में घोलकर कुलियां करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। जिनको सूखी खारिश का मसला हो या दिमागी कमजोरी का मसला हो वो सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लिया करें। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खा लेने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त तेज़ रहे तो पेट भरकर खाना कभी मत खाएं। कान की शदीद दर्द हो तो सोने से कबल कान की बाहर की तरफ लहसुन का टुकड़ा रख लें। सुबह तक कान का दर्द और तकलीफ दूर होगी। लहसुन कान में इन्फेक्शन का बायस बनने वाले जरासीम का खात्मा करता है।